Whenever I'm about to do something, I think, would an idiot do that? And if they would, I do not do that thing. Dwight Schrute. The entire efficacy of this incredibly useful piece of information hinges upon your ability to pick the right idiot. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original Star Wars movies, and even more cautious of people who loved the prequels and the sequels. But I admit this is not a reliable idiot indicator. No, the best way to spot an idiot: look for the person who is cruel. Let me explain. When we see someone who doesn't look like us, or sound like us, or act like us, or love like us, or live like us, the first thought that crosses almost everyone's brain is rooted in either fear or judgment, or both. That's evolution. We survived as a species by being suspicious of things that we aren't familiar with. In order to be kind, we have to shut down that animal instinct and force our brain to travel a different pathway. Empathy and compassion are evolved states of being. They require the mental capacity to step past our most primal urges. This may be a surprising assessment because somewhere along the way in the last few years, our society has come to believe that weaponized cruelty is part of some well-thought-out master plan. Cruelty is seen by some as an adroit cudgel to gain power. Empathy and kindness are considered weak. Many important people look at the vulnerable only as rungs on a ladder to the top. I'm here to tell you that when someone's path through this world is marked with acts of cruelty, they have failed the first test of an advanced society. They never forced their animal brain to evolve past its first instinct. They never forged new mental pathways to overcome their own instinctual fears. And so, their thinking and problem solving will lack the imagination and creativity that the kindest people have in spades. Over my many years in politics and business, I have found one thing to be universally true. The kindest person in the room is often the smartest. पाकिस्तान में ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बहस जो है ना, टेकिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज जस्ट आसिम हैज जस्ट सेड, ये बेकार है. ये रियासत वो है जो एक तबका चलाता है. उसमें शुगर बैरन्स हैं, शुगर ऑटोमोबाइल वाले हैं, पेपर वाले हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, फौज है. ये पाकिस्तान की वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये बहस, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है. ये एक टोला है. कोई एक टोले में कुछ हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर अपने आप को पेश करता है और कुछ टोला है जो प्राइवेट सेक्टर पेश करता है. लेकिन बेसिकली ये दौलत जमा करता है अपने लिए, अवाम से लेकर अवाम को लूट कर. बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है. फर्टिलाइजर कंपनी, fertilizer is a sector which is dominated by फौजी फाउंडेशन. उनको जो गैस दिया जाता है, इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू. गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. तो ये टोला है जो खून चूस रहा है अवाम का, खून चूस रहा है इस मुल्क के वसाइल का. असल मसला ये है, ये एक टोला है जो मुल्क को लूट रहा है और वो टोले को तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इनके साथ.
Great news from Afghanistan. Supreme Commander of Afghanistan, Hibatullah Khunzada, issued an order to TTP through Mullah Rahmatullah Najib of General Directorate of Intelligence. Afghan land will not be used against Pakistan in any way. Afghan nationals will not be sent to Pakistan for military activities. Afghan Supreme Commander's decree for Tehreek-e-Taliban Pakistan. TTP calls back the Afghan nationals sent to Pakistan for terrorism within 40 days, otherwise there will be severe consequences. बलूचिस्तान से शायाशुदा इस तस्वीर में एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हमने असला और बारूद पर किताब को फ़ौक़ियत दी है। हमें अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपने देश में पुरअमन माहौल मुहैया किया जाए। हम गोलियों की बौछार, बारूद की बदबू, गैर महफूज माहौल में भी इल्म का अलम थामे हुए हैं। हमारी तरजीहात को समझें और खुदारा हमें हमारी धरती पर अमन और आज़ादी से जीने का हक दें। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कल पाकिस्तान से एक वीडियो मिली, वीडियो देखी और सुनी, बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ की शायद बयान करना भी मुश्किल है। और इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ है कि इतने बड़े दिन पर मुझे ऐसी किसी बात का रिप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन रिप्लाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम तो किसी पुरअमन जगह पर रह रहे हैं, पुरअमन तरीके से ईद कर रहे हैं आज़ादी के साथ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे मुल्क में हमारे लोगों के साथ जो किया जा रहा है उसको भुला दिया जाए। तो वीडियो के अंदर देखा कि कुछ नाम नहाद मुसलमान, काफ़ी सारे मुसलमान खड़े हुए थे और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि पहले तो चलो कादियानी लोग ये कुर्बानी भी नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेक श्योर किया कि तमाम SHO से उन्होंने गारंटी ली है कि भाई कोई भी कादियानी बंदा इस बार ईद की नमाज भी नहीं पढ़ेगा। और कुर्बानी के हवाले से उन्होंने कहा है कि अपने घरों के अंदर या घरों से बाहर अगर कुर्बानी करने की कोशिश की तो 295 सी लगेगा और आप जेल के अंदर, उनकी औरतें भी जेल के अंदर जाएंगी, ये भी उन्होंने कहा। उनकी औरतों के ऊपर भी वही दफा लगेगी, वो भी अंदर जाएंगे। इतनी बड़ी ये तकलीफ है कि मुझे लगता है कि शायद ये मौत की जो तकलीफ होती है ना वो भी कम है कि आप किसी को नमाज की मस्जिद बंद कर दो कि भाई अब नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो भी ईद की नमाज तो साल में एक दफा आती है। अब वो मुकाम है कि अब आप ये कहना छोड़ दो, अब ये मैंने कहना ही नहीं है भाई कि ये कर लोगे तो पाकिस्तान बच सकता है, ये कर लेंगे तो बच सकता है, वो चक्कर है ही नहीं। अब कहूंगा कि पाकिस्तान में इमरान खान का बाप भी आ जाए ना तो तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को अब तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैंने पहले भी ये बात की थी आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले कि पाकिस्तान तबाही के किनारे पर खड़ा हुआ है, तभी लोग हंसे थे और उसके बाद डिफॉल्ट हुआ पाकिस्तान। बचा लो, अब नहीं ना बचा सकते, उस वक्त भी हंसे थे, आज भी हंसोगे, हंस लो, कोई मसला नहीं है। तुम लोगों से बेहतर वो हिंदू लोग हैं जो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों के लिए वो वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट की कि भाई जी हम लोग इसकी पूजा करते हैं, इसको हम गाय माता कहते हैं और तुम इसको ज़बह कर देते हो ना। उन्होंने तुम लोगों की मस्जिदें तबाह की कि भाई तुम लोग इबादत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में, इंडिया की बात करो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रह के हमारी कौम अपनी कौम के साथ ही वो जुल्म कर रही है कि खुदा ताला जब ऐसा जुल्म देखता है ना अपनी कौम के अंदर कि भाई ये कौम अपनी कौम के साथ क्या कर रही है, तब खुदा ताला वो पूरे के पूरे मुल्क तबाह कर देता है। और याद रखो कि एक मुल्क जो होता है ना वो कौम ही बनाती है, और अगर कौम ऐसे निकले तो उस मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता।